Okay, let's start with exercise 14.1. Find the common factors of the given terms. So first one is, जैसे छोटी क्लास में करते थे ना कॉमन फैक्टर फाइंड, वैसे ही करेंगे। 12 के फैक्टर क्या आते हैं? प्राइम फैक्टर्स अगर देखें, 2 2s आर 4, 3s आर 12 और एक x है, राइट। 36 के फैक्टर 4 9s आर 36 होता है, सो 2 2s आर 4, 3 3s आर 9। प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। नाउ व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? सो क्या कॉमन है दोनों में? 2 2 2 3 3। So common factors are 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 3s are 12 is the common factor. Like this we can find the factors. Okay, next के फाइंड कीजिए सेकंड पार्ट। सभी पार्ट्स आप कंटिन्यू करो, जल्दी से फाइंड कीजिए। 22xy, 2y के तो दो ही फैक्टर्स हैं, 2 into y। 22 कैसे आता है? 2 11s are 22, x and y. Now what are the common factors? 2 दोनों में है, yes. y दोनों में है, yes. So common factor is 2 into y, that is 2y. Third part, 14pq. Third is 14pq, 28p square q square. Find the common factors. Find कीजिए, I am waiting. Write the answer in the chat box. 2x 3x square 4, 2x 3x square 4. Now we have three terms and we have to find the common factors here. जल्दी से लिखो, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ is 6abc, 24a b square, 12a square b. चलो पहले फिफ्थ पार्ट तक करते हैं। हाँ जी कीजिए स्टार्ट। 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 7s are 14 and algebraic factors are p and q. 28 4 7s are 28, so 4 को लिखेंगे 2 into 2 4, 7s are 28. p square means दो बार p आ रहा है, q square means दो बार q आ रहा है। Find the common factors. 2 is in both the terms, right? 7 is in both the terms, तो 7, एक p और एक q, एक p और एक q, तो कॉमन क्या आया? 2 into 7 into p into q. 2 7s are 14 pq. This is a common factor. Moving to the next one, 2 and x. So 2 into x, 3x square. x square means x को दो बार मल्टीप्लाई किया है। 4 के फैक्टर 2 2s are 4. अब क्या ऐसी कोई टर्म है, ऐसा कोई फैक्टर है जो तीनों में हो? नो, तो कुछ भी नहीं है, सो कॉमन फैक्टर विल बी 1। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लिख देना है, 1। So next is 6. 6 is 2 into 3 6, ABC. So A into B into C. 24 4 6 are 24, 2 2s are 4, 6 कैसे आएगा? 2 3s are 6. A B square means B आ रहा है दो बार। 12 4 3s are 12, 2 2s are 4, 3s are 12. A square, A into B. Find the common factors now. 2 तीनों में है, right? 3 तीनों में है क्या? 1 2 3 तीनों में है। A तीनों में है, A। नेक्स्ट फैक्टर चेक करते हैं, B तीनों में है, 1 2 और 3। नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है C, जो कि सब में नहीं है तो आगे नहीं आएगा। तो क्या फैक्टर्स आ गए? 2 into 3
into A into B. 2 3s are 6, A, B. This is the common factor. Right? Now write down the statement of 6th, 7th and 8th part. Quickly. 16x cube. 16x cube. Next term is minus 4x square. 32x. Find the factors and then write the common factor. जल्दी से स्टार्ट करेंगे. 10pq 20qr 10pq 20qr 30rp 30rp. तो इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. देन द लास्ट पार्ट, 8th part, 3x square y cube, x square y cube. After that, 10x cube y square, 10x cube y square, and the next term is 6x square y square z. चलिए फाइंड द फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स फाइंड कीजिए. 16, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. x cube means 3 बार लिखा जाएगा. minus 4 minus 2 into 2 x square, x into x. You can write it as minus 1. अगर नेगेटिव साइन है -1 multiply 2 into 2 भी लिख सकते हो. 32, 4 8s are 32, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. x. Now find the common factor. 2 तीनों टर्म्स में है लेकिन इसमें नहीं है. x तीनों टर्म में है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है. सो कॉमन फैक्टर विल बी 1. ठीक है. Okay, sorry, 16x cube is a one term. These are not separate term. This is 16x cube. Okay. So ये आ गया 2 into 2 into 2, x into x into x 3 बार. Now we have a common factor 2 1 2. इसमें मिनिमम 4 बार आ रहा है, इसमें मिनिमम 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ही होगा कॉमन. x मिनिमम कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1x. So 2 into 2 into x. So common factor is 4x. ठीक है. Next is 10pq. 10 को कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स. 2 5s are 10. pq 20. 2 2s are 4, 5s are 20. qr 30. 2 2s are okay, 30 is 5 6 are, so 2 3s are 6, 5s are 30, r into p. So here we have 3. 2 3s are 6, 5s are 30. Now find the common factor. 2 सब में है, right. 5 सब में है, yes. p सब में है, 2 में है, तो कॉमन नहीं आएगा. q भी 2 में है, r भी 2 में है. So common factor is 2 into 5, that is 10. Next 3x square, पावर 2 है तो 2. हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं 8 पार्ट दोबारा से बता रही हूँ. 3x square y cube. x square means x 2 बार, y cube means y 3 बार. 10x cube y square, x cube मतलब x 3 बार, y square y 2 बार. 6x square y square z. तो इसमें से हम यहां से भी देख सकते हैं जो गिवन टर्म्स है, एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है एंड मिनिमम पावर इज एक्स की 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा. y की टर्म सब में आ रही है एंड मिनिमम पावर इज 2, तो y स्क्वायर इज कॉमन. ठीक है.
फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर फाइंड करना सीखे थे. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस algebraic expression. So first one is 7x minus 42. तो is there anything common? कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन है? Yes, 7 is common. क्यों? क्योंकि 42 के दो फैक्टर है. 7 6 are 42. 7x टर्म के दो फैक्टर है 7 and x. तो 7 फैक्टर is common in both the terms. तो we will take 7 as common and bracket में यहाँ बचा x, then negative sign here, तो यहाँ बचा 6. तो इसके फैक्टर्स क्या है? 7 and x minus 6. हमें अलग अलग फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करना है. तो these are the two factors. Clear? Now next is, ये मैंने आपको 7x 7 6 ये सिर्फ समझाने के लिए कराया है, ये आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है. अब मैं देखूं 6p, कौन से फैक्टर्स हैं? 6 and p. 12q, 6 2s are 12 होते हैं, क्योंकि मुझे कॉमन फैक्टर लेना है तो मैं देखूंगी कि 6 इसका फैक्टर आ रहा है q. So 6 is common in both the terms. पहली टर्म में बचा p, then minus sign is here, then बचा 2q. 6 कॉमन आ गया दोनों में. पहली टर्म में देखो p बचा, then negative sign is here, 2q. Now let us move to the third part. 7a square plus 14a. 7a square के फैक्टर क्या है? 7a. 7a square, 7a. 14 का फैक्टर, 7 2s are 14 and 1a is there. So common factor is 7 and a. दोनों टर्म्स में है, तो 7a is common. पहली टर्म में क्या बचा? a, then plus sign is here 2. आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. 7a square, 7 2s are 14a. ठीक है, क्लियर? माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. ये मैं सेपरेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे फाइंड करने हैं. नाउ माइनस 16, 4 4s are 16z. 20 में क्या 4 फैक्टर आता है? यस, 4 5s are 20 लिख देंगे. z क्यूब मीन्स 3 बार z. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? 1 4 is common and z is common, right? So 4z common. पहले क्या बचा? -1 multiply 4, -4 plus 5 z into z, z square. क्लियर है? पहले आपको ऐसे अलग अलग सेपरेट करके लिखने की जरूरत है, उसके बाद आप डायरेक्ट देख सकते हो क्या कॉमन आ रहा है. जैसे इन दोनों में z की टर्म थी, तो आप मिनिमम पावर ऑफ z देखोगे, डेट इज 1, तो z विल बी कॉमन. 16 एंड 20 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, सो 4 इज कॉमन. ठीक है, अब अगले में हम सिंपली कॉमन लेके देखते हैं. 20l square m. राइट ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ पार्ट. 20l square m प्लस 30 ALM. पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं. 20 एंड 30 दोनों किसके टेबल में आएंगे? 10 के. तो 10 इज कॉमन. नाउ L की टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, मिनिमम पावर यहाँ है, तो L विल बी कॉमन. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो L की पावर 1 इज मिनिमम, तो L इज कॉमन. M दोनों में है, दोनों में मिनिमम पावर इज 1, तो M इज कॉमन. अब यहां से 10 ले लिया तो क्या बचा? 2. L स्क्वायर में से एक L बाहर ले लिया, क्या बचा? L. M ऑलरेडी बाहर आ गया. 10 कितने का 30 होता है? 3s are. A बचा, L M दोनों बाहर आ चुके हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स. अब मैंने अलग अलग फैक्टर्स करके स्प्लिट करके उनमें से कॉमन फैक्टर नहीं निकाला, डायरेक्टली किया. आपको ऐसे ही करना है, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था.
ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स पार्ट, राइट डाउन द स्टेटमेंट। 5x² y minus 15 xy²। अब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 5 एंड 15, 5 के टेबल में। नाउ x एंड y दोनों में है, मिनिमम पावर ऑफ x इज 1, मिनिमम पावर ऑफ y इज 1। 5 इज कॉमन, बाहर आ गया। x² में से एक x हम बाहर लिख चुके हैं, तो क्या बचा, एक x, y भी बाहर आ गया। नाउ नेगेटिव साइन इज हियर, 5 3s आर 15, x बाहर है, y² में से एक y बाहर है, तो यहाँ बचा एक y। अगर आपको अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो रही है, तो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट्स में करवाया था, फैक्टर्स लिख के तब कॉमन निकाल लो, वैसे कर लो, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप ऐसे कर सकते हो। 7th पार्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे, 10a² minus 15b², 10a² minus 15b² plus 20c². This is a statement, right? Okay. 10, 15 and 20 सारे 5 के टेबल में आते हैं। वेरिएबल्स सब में डिफरेंट है, a² b² c², so nothing is common here. 5 2s are 10, so 2a². Negative sign is there. 5 3s are 15, b² plus sign is there. 5 4s are 20, 4c². यहाँ तक क्लियर? Moving to the 8th part, minus 4a² plus 4ab minus 4ca, minus 4a² plus 4ab minus 4ca. सब में 4 है, take 4 as common. Okay, now check the variables. A सब में है, minimum power is 1, तो A कॉमन, B सब में नहीं है, C सब में नहीं है। पहले 4 1s are 4, a² में से a के बाहर ले लिया, यहाँ बचा a, देन प्लस साइन इज हियर, 4a कॉमन, क्या बचा, b, देन नेगेटिव साइन इज हियर, 4 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, यहाँ बचा ओनली c। ठीक है, 9th पार्ट खुद ट्राई कीजिए, देन चेक द आंसर। x² yz plus xy²z plus xyz², ट्राई कीजिए। चलिए 9th पार्ट ट्राई करेंगे सारे क्विकली। ओके, सो व्हाट इज कॉमन हियर, x सब में है, y भी सब में है, और z की टर्म भी सब में है, एंड मिनिमम पावर जो है टर्म में किसी, दैट इज x y z। yz यहां से आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया, यहाँ बचा एक x, सिमिलरली xz आ गया, एक y बचा, और यहाँ पे एक z बचा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ax² y bxy² cxyz। ओके, लेट्स सी, x इज कॉमन, जो सब में है, x की टर्म y की टर्म भी सब में है। ओके, मिनिमम पावर 1 है x एंड y, तो x y पहले में कॉमन आ गया, क्या बचा, a, x² में से एक x बाहर, तो x प्लस b, x y बाहर आ गया, एक y बचा, c, x y बाहर आ गया, एक z बचा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज। ओके, इसमें हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, जहां पे हमें जरूरत हो रीअरेंज करने की। अगर ऐसे ही सॉल्व होता है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, अगर प्लस की टर्म्स है, हम आगे पीछे भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर मैं पहली दो टर्म्स देखूं, x इज कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स, तो x² में से x ले लिया, यहाँ बचा x, ये x चला गया, यहाँ बचा y। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स देखूं, 8 is common in both the terms,
पहली टर्म के साथ x बचा, दूसरी टर्म के साथ y बचा। जब ऐसे फैक्टर्स बनेंगे, एक जो ब्रैकेट का फैक्टर होगा हमेशा कॉमन होगा, मींस इसके अंदर जो ब्रैकेट के टर्म्स है वो हमेशा सेम होंगी। अगर आपकी सेम नहीं है, इट मींस आपने कहीं मिस्टेक की है। सो x प्लस वाई इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर आएगा डेट इज x एंड दिस प्लस 8. So these are the factors of the given equation. Now question number 2, second part is का 15xy minus 6x plus 5y minus 2. There are two options कि 5 and 15 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो मैं इनको एक साथ रख लूं। 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो इनको एक साथ रख लूं। चाहे जिस ऑर्डर में है मैं उस ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकती हूँ। चलिए मैं इसी में करती हूँ। 6 and 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, x is common, 3 5s are 15, 5y बचा, माइनस साइन इज देयर, 3 2s are 6, x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, 5y minus 2, 5 and 2 किसी भी टेबल पे नहीं आते, सो कॉमन इज 1, 5y minus 2 इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, so 5 minus 2 is one of the common factor and the other factor will be 3x plus 1. आप किसी भी वे से करो, फैक्टर्स वही आएंगे जो दोनों में आएंगे, मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट आ जाएंगे, वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ax plus bx minus ay minus by, ax plus bx minus ay minus by. Let me check it again. ax plus bx minus ay minus by. Okay. So यहाँ पे भी आप फर्स्ट टू टर्म्स को भी एक साथ रख सकते हो, ax minus ay को भी एक साथ ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। अगर मैं इन दो में देखूं, x इज कॉमन, तो यहाँ पे बचा a प्लस b। अगली दो में देखूं, माइनस y इज कॉमन, a प्लस b। जब माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज होगा टर्म्स का, ये ध्यान रखना है। ब्रैकेट में सेम टर्म है, दोनों में a प्लस b, दिस इज द कॉमन फैक्टर, एंड द अदर फैक्टर विल बी x माइनस y। क्लियर? फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे, देन मैं सॉल्व करूंगी, आप चेक करोगे आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट पे राइट ऑन द स्टेटमेंट, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, 15pq प्लस 15 सॉल्व करेंगे जल्दी से। 15pq प्लस 15 9p प्लस 25q, यही था? नहीं, 9q एंड 25p है, 9q 25p। ओके, कैसे अरेंज करोगे, चॉइस आपकी है। अब देखो, अगर आप इन दोनों को अरेंज करते हो तो PQ, लेकिन अगर इन दोनों को देखो तो PQ कॉमन नहीं आएगा, तो 15PQ को चाहे आप P वाली टर्म्स के साथ ले लो, चाहे Q वाली टर्म के साथ ले लो, ताकि कुछ कॉमन आ जाए। तो मैंने P के साथ ले लिया क्योंकि 15 एंड 25 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, देन 15 प्लस 9Q। Okay, 5p is common, 5 3s are 15, q 5 5s are 25. Now 15 and 9 3 के टेबल में जाते हैं, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 5 plus 3q या 3q plus 5 सेम ही बात है, क्योंकि प्लस की है दोनों टर्म्स, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम। So 3q plus 5 is the common factor and the other factor will be 5p plus
3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप इन दोनों को साथ रख लेते तो क्या होता, मैं करके दिखा रही हूँ. 15pq प्लस 15, तो ये आ गया 15pq प्लस 1. अब 9q और 25p में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ना तो p है ना q है ना 9 और 25 किसी एक पे जाते हैं, तो ये तो यही टर्म बच गई. अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म नहीं है, तो इस तरह से ये अरेंज नहीं होगा. ठीक है, देयर इज अदर वे, लेकिन वो अभी आपकी क्लास के लिए नहीं है कि कॉमन लेके डिवाइड कर दे. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz. z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz. ओके, चलो करो सॉल्व इसे. फर्स्ट दो टर्म्स देखूं तो वन इज कॉमन, नथिंग एल्स, z माइनस 7. अगली दो टर्म में से x y इज कॉमन, 7 माइनस z. z माइनस 7 एंड 7 माइनस z, दीज आर नॉट सेम टर्म्स. अगर दोनों में प्लस होता है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, सो दे आर सेम, लेकिन ये सेम नहीं है. So what we will have to do, take the negative sign common here. जब नेगेटिव कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. अब z प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया. नाउ दिस इज द कॉमन फैक्टर जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, z माइनस 7. अदर फैक्टर विल बी 1 माइनस xy, राइट. So this is all about exercise 14.1. यहाँ पे होती है फिनिश. अगर किसी को कोई डाउट है 14.1 में तो मुझसे पूछ सकता है.